सर आपके पीछे right. Power is gained by sharing knowledge and not hoarding it. Good morning, teachers. I'm happy to greet all of you here in the 7-day virtual faculty development program on empowerment of physical education teachers and coaches, organized by Physical Education Foundation of India in association with DPS International School, Saket, along with GD Goenka Public School, Rajnagar Extension, Ghaziabad. Friends, this FDP was organized with the aim of equipping faculty members, the physical education teachers, with the required skill and knowledge. Also to identify the importance of physical education teachers, or I must say physical education professionals, as the agents of social change in the country on the basis of health for all and sports for all. And in the same link, today, on the 4th day of this FDP program, we have with us a renowned sports physiotherapist, Dr. Ramandeep Kaur, madam, who will be sharing with us the tips on management of sports injuries. Regarding our expert today, a philanthropist working for physio awareness and disabled person, a qualified cupping therapist, dry needling therapist, and a virtual healer. Director of IFI, Physical Therapy and Fitness Clinics, which is a physical and virtual clinic for all over the Delhi for physiotherapy, fitness, slimming, and wellness practice. Also physiotherapist to the Indian international team of wheelchair cricket. Have been organizing free physiotherapy camps for last 5 years and working with disabled people for their growth and promotion. A national awardee of physio awareness. It's an honor to have you with us. We welcome you, ma'am. Before we start, let me explain how you can talk to us during this session. If you have any questions or doubt during this session, just write them into the comment section. We'll pick up those questions and it will be answered by the expert. Now, without wasting much time, I would request our expert, Dr. Ramandeep Kaur, on screen. Ma'am, please. Hello, everybody. Thank you. Namaskar, सबको. मेरे बारे में आपको पता चल गया है. बाकी पेफी से we are more related. It's been long now, and आप मेरे last session में भी आए थे, and we had a very engaging involvement. Thank you for everything. मैं भी ज़्यादा time अपनी introduction में या किसी और की introduction में नहीं लेंगे. So we'll start off with the topic because this is a very important topic today. जो management of sports injuries पे है. So सबसे पहले just to introduce the topic, हम लोग sports injury के बारे में बात करेंगे. What are sports injuries? So sports injuries, any impact, कुछ भी collision या कोई भी sports के टाइम पे कोई भी इंजरी हो जाती है या एथलेटिक एक्टिविटी के टाइम पे या कोई भी एक्सरसाइजिंग के टाइम पे, सो वी कॉल इट अ स्पोर्ट्स इंजरीज. अब क्या होता है उसमें? एक पेन, डायरेक्ट पेन, ऑब्वियसली एक इट इज अ सिम्टम. कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ. अब उसमें हमें क्या करना है? हमें एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव एंड एक असेसमेंट प्लान बनाना होता है हर एक चीज में. सो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, कौन सी कॉमन इंजरीज हमारे पास होती है और क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों हो रही हैं? सो या तो हमारे पास प्रॉपर वार्म अप नहीं था, या प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं की, प्रॉपर लैक ऑफ कंडीशनिंग थी, या इम्प्रॉपर इक्विपमेंट था. कोई इक्विपमेंट, आपने हेलमेट पहना वो प्रॉपर नहीं था, तो हो सकता है कंकशन हो जाए. सो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं थी. बस आप आए और आपने आकर सीधा स्पोर्ट्स में अपनी एक्टिविटी कर दी या कोई भी एक्सरसाइज कर दी. सो वी आर नॉट फॉर दैट. वी हैव टू be preventive. So the first thing is to prevent from the injuries, right? So हमें क्या, मसल sprains, strains, tears of the ligaments, उन सब से हमें बचना है. So सबसे पहले prevent करना है अपने आप को, and then we have to go further. अपनी management तो बाद में आता है, पहले prevention आता है ना? So prevention पे हमें ध्यान रखना है. So prevention के बाद, now with the topic today that we have to manage things. तो कैसे manage करना है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजरीज कौन सी होती हैं. सो विल कम अप विद
some injuries जो normal हमारी field में या कहीं पर exercises में हो जाती हैं, and they could be most vulnerable, या normal sprains या strains भी हो सकते हैं जो आपका quickly ठीक हो जाए. और हम एक्चुअल में क्या होता है, फील्ड में जब जाते हैं एज अ फिजियो, सो हमारे पास टारगेट होता है 5 मिनट्स का. सो वी हैव टू मेक अ डिसीजन इन 5 मिनट्स. अगर 5 मिनट्स में हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, प्लेयर ठीक हो रहा है, सो वेल एंड गुड, हम लोग आगे चलेंगे. नहीं तो वी हैव अनदर ऑप्शंस. हमें उसको कैसे एंगेज करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है स्पोर्ट्स इंजरीज की, उसके बारे में हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे आज, राइट? So the first thing is, मैं अपना एक छोटा सा फ्रेंड लेकर आई हूँ साथ में. आई एम श्योर मेरी हर एक वीडियो में ये होता है. So इंजरीज हमारी कहाँ से हो सकती है, राइट? सो हेड इंजरीज मतलब आपका कंकशन हो गया, डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं से अगर आप से सॉकर प्ले कर रहे हो और एक डायरेक्ट कंकशन आपका कहीं पर हिट हो गया, मे बी टू द अदर प्लेयर और मे बी फील्ड पे हो गया या कहीं भी हो गया, राइट? सो डायरेक्ट हिट हो गया. अब दिस इज लाइक द हेड इंजरी, है ना? सो उसमें हम हेड इन्वॉल्वमेंट आएगी. इसके बाद इट कुड बी फेस पे. सो आई पे हो सकती है, आई बॉल पे, या नोज इंजरी, नोज के एपिस्टैक्सिस हो जाता है. एपिस्टैक्सिस मतलब आपकी नोज ब्लीडिंग हो गई. सो अब ये कैटेगराइज हम लेटर ऑन करेंगे कि इसको किस डिग्री में हम इसको लेंगे. फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री, किस टाइप की इंजरी है, वो हम मैनेजमेंट पे अभी आएंगे. सो टू नो अबाउट कौन सी इंजरीज, राइट? सो नोज पे इंजरी, जो जैसे मैंने आपको एपिस्टैक्सिस बताया, अगेन इट कुड बी योर कहीं पर भी से टीथ ब्रेक कर गया. सो आपको उस टाइम पता होना चाहिए उस चीज का, राइट? इट कुड बी अ जॉ इंजरी, राइट? सो यहाँ पर कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका ये फ्रैक्चर हो जाता है, राइट? सो वी कॉल इट अ मैंडिबल फ्रैक्चर. इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, राइट? ओके, सो व्हेन वी कम फॉरवर्ड, अब इसके बाद हमारा रिब केज, डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, कुछ भी इंपैक्ट हुआ, यहाँ पर इंजरी. इट कुड बी अ फ्रैक्चर, इट कुड बी अ स्प्रेन, डायरेक्ट आपके चेस्ट पे बहुत ज्यादा हो सकती है पेन. और उसके बाद we actually prefer that the patient is not moving and हम उसको mainly गेम से बाहर ले जाते हैं and then उसको हम मैनेज करते हैं कि कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, राइट? ओके, सो वी कम अप विथ शोल्डर. सो शोल्डर में क्या हो सकता है? शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एंड इट्स वेरी कॉमन इंजरी. मैं आपको एक परसेंटेज भी बताऊंगी कि कौन सी परसेंटेज पे कौन सी इंजरीज कॉमन है, राइट? सो शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है. इट कुड डिसलोकेट, ठीक है? डोंट गो फॉर दिस, ये पहले डिसलोकेटेड है. बट एनीवेज दिस कुड डिसलोकेट, ठीक है? यहाँ पर डायरेक्ट इंपैक्ट. इट कुड बी अ सुप्रास्पाइनेटिस टेंडोनाइटिस, इसके ऊपर कोई भी टेंडोनाइटिस हो सकता है. दिस इज वन. एंड उसके बाद इफ वी गो हियर, इट कुड बी अ फ्रैक्चर. ये हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है. इट कुड बी एन एल्बो. एल्बो बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन फ्रैक्चर्स ऑफ एल्बो. डिसलोकेट हो जाता है और उसके अलावा फ्रैक्चर्स आ जाते हैं ऑफ योर अल्ना रेडियस एंड अल्ना. सो इसका कंबाइंड फ्रैक्चर भी हो जाता है. देन वी कम ओवर टू द रिस्ट, राइट? सो रिस्ट कॉमन, वेरी कॉमन फ्रैक्चर्स, बिकॉज ये आउटस्ट्रेच्ड हैंड, मतलब हम जब गिरते हैं तो हम अपना रिफ्लेक्स एक्शन से हम उसको अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं. जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो इम्पैक्ट आता है लाइक दिस. सो हमारा एक्सटेंशन में मेनली जो है, हमारा एक्सटेंशन में हमारा हैंड जाता है एंड उसकी वजह से हमारा आउटस्ट्रेच्ड हैंड ये इस पोजीशन में आ जाता है एंड देन देयर इज अ फ्रैक्चर. इट कुड बी अ फ्रैक्चर इन द रिस्ट. अब रिस्ट के आगे हम लोग हैंड पे आएंगे, राइट? सो आई एम बीइंग अ बिट क्विक क्योंकि मेरा मैनेजमेंट मेन है. सो ये मैं ब्रीफ आपको इसके बारे में बता रही हूँ. आई विल टेक अनदर सेशन, सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज पे लेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज पे. उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल माइनर स्टडी करेंगे कि क्या क्या स्पोर्ट्स इंजरीज ज्यादा होती हैं. सो अभी ब्रीफ क्विक रिव्यू. ओके, सो हैंड पे फेलेंजेस पे या मे बी कार्पल्स पे, मेटाकार्पल्स पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ आपका और उस पे फ्रैक्चर आ गया. आपको फ्रैक्चर आया and then you know that you can't play, right? But again we have to see what kind of fracture. Is it very
इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। अगर नहीं है तो हम गेम में प्लेयर को वापस भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। ये हमारे कोचेस का, ये हमारे टीचर्स का भी फर्स्ट इम्पैक्ट होना चाहिए हमारे प्लेयर्स पे, कि वो कैसे कैसे एक डिसीजन मेक करेंगे। क्योंकि फिजियोज या जो मेडिकल टीम है वो बाद में आती है, सबसे पहले मोस्ट कॉमनली आते हैं हमारे कोचेस या टीचर्स जिन्होंने हैंडल करना है। क्योंकि स्कूल्स में अगर इफ टॉक अबाउट, जैसे आपका स्कूल है जीडी गोयनका और डीपीएस, उसमें बहुत सारी गेम्स होती रहती हैं। सो इसमें भी अगर कोई प्लेयर में, अगर कोई स्कूल में हो जाता है कुछ, कोई ऐसा इम्पैक्ट आ जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, सो you need to know that the first line of your communication would be your coach, your teacher. So the teachers and the coach need to know about every injury, every possible management, and of course the prevention of the injury, right? So we came up with the upper limb. ये upper limb हम लोग ने almost cover किया है. If I go back now, this is the cervical region की जब इंजरी होती है, it is a very impactful injury and we can't just take it very normally. सर्वाइकल को हमें बहुत लेना पड़ता है बिकॉज इससे डायरेक्ट पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट अगर यहाँ पर इंजरी हुई है, वी हैव टू सी एंड वी हैव टू मैनेज एंड वी हैव टू मेक अ क्विक डिसीजन कि उसको कैसे, अगर तो उसको ज्यादा लगी है, अगर यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ व्हिप्लैश इंजरी, अगर एक बारी पोजीशन फ्लेक्शन में आई एंड देन एक्सटेंशन में गई, इट कुड बी अ फ्रैक्चर ऑफ योर सर्वाइकल जो सेगमेंट्स है हमारे, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है एंड इट कुड बी अ डिसलोकेशन एज वेल देयर. सो उस चीज पे हम लोग को ध्यान देना है कि किस टाइप की इंजरी हुई है, राइट? If we come over to the thoracic region, this is our back, right? So ये जो vertebrae है हमारे सारे, so vertebrae में अब thoracic region में अगर हम आए, thoracic region में अगर इंजरी होती है, उस पे हमें कैसे मैनेज करना है. और कई बार होता है that we have to take the patient एक log rolling में, एक उसका स्ट्रेचर आता है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे हम उस पेशेंट को लेकर जाएंगे. एक लॉग रोलिंग, लॉग मतलब एक जैसे लकड़ी होती है, उस जैसे हमें लकड़ी को उठाना पड़ता है क्योंकि वी कांट बेंड द लकड़ी, राइट? सो उसको हमको क्या करना है, जो लॉग है वो स्ट्रेट ऐसे ही जाता है ना? जैसे से इट कुड बी अ पेन, आई कांट फाइंड पेन, सो एनीवेज इट कुड बी अ पेन, जैसे पेन होता है वैसे ही लॉग होता है ना? सो ये ऐसे अटैच्ड है, सो इसको हम ऐसे ही लेकर जाएंगे. सो पेशेंट को भी हम ऐसे ही लेकर जाएंगे एक सेगमेंट में, वन सेगमेंट में. वी कांट बेंड द पेशेंट इफ देयर इज अ बैक, इफ इट इज अ वर्टिब्रल इंजरी. सो उसको हमें एक ही सेगमेंट में एक स्ट्रेचर पे डाल के उसको लेकर जाना पड़ता है, राइट? देन वी कम ओवर टू इधर. सो द लंबर इंजरी, लंबर में एलबीए, कुछ भी उसको मेनली हो सकता है कि नॉर्मल एक स्ट्रेन हो, ये भी हो सकता है कि बैक पोस्चर की वजह से उसको कोई स्ट्रेन आ गया हो, या इट कुड बी एन इम्पैक्टफुल बैक इंजरी एज वेल. सो वी नीड टू नो अबाउट दैट. इसके बाद these are not very common injuries in sports. Okay, then we come over to the lower limb injury. ठीक है? So lower limb injury में आपका hip injury, it's very common. Hip strains बहुत आ जाते हैं, यहाँ पर भी muscle strains बहुत common है. Hamstring muscles और पीछे आपकी quadriceps muscles. Sorry, quadriceps and hamstrings. Sorry. So quadriceps and then hamstrings. So आपकी जो hamstring muscle है उसको stretch, उस पे भी sprain बहुत common है. It's a very common strain. So you need to know about all the strains and sprains, and it is the work of the coaches and the teachers to know about each and every injury, right? Okay, knee is the most common segment. Knee injury पे if I talk about players, तो हमारे if I talk about Ronaldo को इंजरी हुई है. And the first foremost thing I would tell to every teacher, every coach and every player that कोई भी इंजरी अगर होती है तो वो properly manage हो जाती है. So it doesn't mean कि प्लेयर चले जाए वापस और उसके बाद वापस गेम में नहीं आए. बहुत सारे हमारे बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें हमने देखा है, हमने बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं ऐसे, और उसमें क्या होता है कि पेशेंट से प्लेयर एक बार अपने इंजरी हुई और उसके बाद वापस नहीं आता. हमने एक कैंप लगाया था रोहतक में. वहां पर वी जस्ट गॉट टू नो दैट जो
80% ऑफ प्लेयर्स इनको इंजरी हुई है, दे नेवर केम बैक टू द गेम. वो रीजन क्या है? बिकॉज दे नेवर हैड एनी awareness. They never had any awareness about it because उनको पता ही नहीं है कि इंजरी हमारी ठीक हो पाएगी या नहीं. उनको लगता है एक बार इंजरी हो गई and then that's gone, हम लोग अब प्ले नहीं कर सकते. But no, it is never that. हम लोग कुछ भी इंजरी हो, so we need to manage it, है ना? So अगर तो नॉर्मल इंजरी है तो वो फील्ड पे भी मैनेज हो जाती है. अगर ज्यादा है so you can go to a physio. अगर उससे ज्यादा है, अगर हमको लगता है कि it has to be managed सर्जिकली, तो सर्जिकली भी मैनेज होती हैं थिंग्स. ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ जो प्लेयर है उसको एक ही बारी लगी और उसके बाद वो उसका करियर फिनिश हो गया. इट इज नेवर दैट. Okay, so it is the first line of the communication is with the coaches, क्योंकि उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहती है प्लेयर्स की कोचेस के साथ, टीचर्स के साथ, तो they have to know about it, right? Okay, so we come over to so the lower limb, right? So lower limb में knee. अब knee पे ligament injuries, they're very common. ACL injury, PCL injury, medial collateral ligament injury, है ना? So injuries, patellofemoral injury, कुछ भी, right? ये हो सकता है. And then fracture हो सकता है. Ankle injury, it's very common. Ankle, right? So this is the ankle. Ankle इसका dislocate हो जाता है या sprains and strains, they're very common. Foot injury, ठीक है, मार्च फ्रैक्चर हो जाता है किसी प्लेयर को. So these are the kinds of injuries जो हम लोग, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, and it is very important for everybody to know about it, right? अब इसकी कितनी engagement होती है? Say about lumbosacral, अगर spine की मैं injury बोलूं, it is about 19% of the total injuries जितनी होती हैं. 19%, it's like too much. मतलब हम लोग को बैक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना भी चाहिए, और बैक की पूरी स्ट्रेंथनिंग हमें बिगिनिंग से ही करवानी चाहिए, सो दैट हमारी प्रिवेंटेड रहे, बैक प्रिवेंटेड रहे, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी, राइट? अगर हम शोल्डर की बात करें, अबाउट 13% भी बहुत ज्यादा होता है. 13% ऑफ द शोल्डर इंजरीज जो होती हैं वो फील्ड पे होती हैं. फील्ड होगी या एक्सरसाइज करते हुए होगी, इट कुड बी, राइट? सो कहां पर हो रही है, सो यू नीड टू नो. इसी के लिए स्पोर्ट्स इंजरीज इज ऑल्सो अ वाइड टॉपिक टू नो अबाउट, राइट? अब इसके बाद है जो हमारी मसल इंजरी है, अबाउट 7% ऑफ मसल इंजरी. लोअर लिम्ब इंजरी अबाउट 4% है. सो बहुत सारी है. बाकी छोटी छोटी इंजरीज हैं, से हमारी फोर आर्म इंजरी अबाउट 2% होती है. आईज पे हमारी 1%, इट कुड बी अ चांस 1% इंजरी, अगर कोई बॉल, जैसे से क्रिकेट है या कोई और बॉल वाली कोई गेम है, सो इट कुड बी एन इम्पैक्ट ऑन द आई. So direct impact on the eye could cause an eye injury, और इसकी वजह से blind भी हो जाता है patient. But you need to know कि किस टाइम पे क्या मैनेज करना है, right? अब if I talk about cervical injury, cervical 11%, and it is the most dangerous, I would say. So cervical को मैनेज करना बहुत important है, and again the coaches should know better कि कैसे उसको हमें मैनेज करना है, right? Okay, so अगर हम इसको डिवाइड करें इंजरीज को, we divide it into two, right? So it is an acute injury and it could be a chronic injury. मतलब acute and chronic injury, they are divided into दो नेम से ही पता चलता है कि it is acute. Acute मतलब जो अभी लगी है, say maybe playing when the player was playing the game या sports, तो उस टाइम एक इंजरी लगी, ठीक है, इंजरी हो गई उसको. इट कुड बी अ सॉकर, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ स्लिप. मतलब अगर तुम नॉर्मल भी प्ले कर रहे हो एंड अ स्लिप हो जाए या फॉलिंग हो जाए, सो इट कैन कॉज एन इंजरी एंड इट इज एन एक्यूट इंजरी. अ स्प्रेन, अ स्ट्रेन, इट कुड बी अ एक्यूट इंजरी. सो एक्यूट इंजरी को हमें कैसे मैनेज करना है, that is also a bit different, right? And a chronic injury को कैसे मैनेज करना है. अब chronic injuries को हो सकता है it is a long term injury, मतलब जो पुरानी चली आ रही है, like an ACL injury, जो हमें नॉर्मल हो जाती है, बट देन हम उसे मैनेज करते हैं इन द बिगिनिंग, बट अगर वो नहीं ठीक होती, बिकॉज अगेन इट इज ग्रेडेड, राइट? अगर हम उसको ग्रेड करेंगे, अगर इट इज अ 3rd degree इंजरी, सो यू नीड टू गो फॉर अ सर्जरी, राइट? अगर सर्जरी के बाद फिर उसको प्रॉपर रिहैबिलिटेट करना पड़ता है. रिहैबिलिटेशन के बाद देन यू कम बैक टू योर नॉर्मल गेम, राइट? ऐसे नहीं है कि हम नॉर्मली अगर सिर्फ लगा एंड देन यू नीड टू नो द होल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स कि क्या क्या होते हैं, कैसे है, राइट? सो क्रॉनिक
एंड एक्यूट इंजरी, उसके बारे में भी हमें पूरी एक पता होना चाहिए, राइट? सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द हेड इंजरी, सो हेड इंजरी में एक असेसमेंट टूल होता है. सो द असेसमेंट टूल इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स कंकशन असेसमेंट टूल, SCAT टूल, राइट? सो एक ये टूल है जिसके बारे में जो हमारे पास होना चाहिए, हमारे कोचेस के पास होना चाहिए. सो उसके टूल जो एक, इट इज अ पेपर बेस्ड टूल, या पेपर हो गया या जैसे ऑनलाइन आप कर सकते हो. सो उसमें यू नीड टू ऐड कब इंजरी हुई, यू नो द होल असेसमेंट, कैसे हुई, कब, कितना, इज द पेशेंट कॉन्शियस, उसके ग्लास्को स्केल आता है एक, सो वो कितना है, इज ही कॉन्शियस, उसकी आईज ओपन है, इज ही टॉकिंग, इज ही स्पीकिंग, इज ही लिसनिंग. सो वो सारी चीजें हेड इंजरी के मामले में you need to know. So it is a very important tool. We call it a sports concussion assessment tool, and it is very important for a coach, a teacher to have it handy. मतलब एक first aid में ये चीजें होनी आपकी, you know, we always used to think कि दवाइयाँ हो, एक sprain bandage हो, या एक ये normal, but no, not now. अब वो पुराना जमाना हो गया. अब हमें assessment tools भी important है, because the first line again the communication is the coach, the teacher. So of course the player has to know about it as well. अगर player को ही नहीं पता होएगा तो वो approach ही नहीं करेगा, right? So ये पूरे all over जितने भी sports people हैं, they should also know about all the injuries. ठीक है? This is a whole study. Cervical का I told it's very important. अगर कहीं unconscious हो जाए patient, right? तो हमें कैसे उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है. सो क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, हम नील डाउन पोजीशन में आके उसकी नेक होल्ड करते हैं, राइट? दिस इज अ नील डाउन पोजीशन एंड देन यू होल्ड द नेक लाइक दिस. और आपको यू हैव टू असेस, उस टाइम पे एक असेसमेंट ये होती है, यू नो वी कॉल इट कि एक उसका एयरवे कैसा है, हाउ अबाउट द एयरवेज, कैसा उसका ब्रीदिंग कैसा है, उसको सर्कुलेशन हो रहा है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई. सो वी नीड टू नो अबाउट दैट. ठीक है? दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग दैट उस टाइम. और अपना नेक को इमोबिलाइज करना है. उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो हम कैसे अप्लाई करते हैं. इट कुड बी हम एक नॉर्मल न्यूज़पेपर लेकर हम उसको एक रोल अप कर सकते हैं और उसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं नेक को, एंड देन अगर हमें उसको स्ट्रेचर में डालना है, सो वी जस्ट पिक द नेक, क्योंकि एक नेक अलग सेगमेंट हो गया, सर्वाइकल एक अलग सेगमेंट हो गया, उसको पिक करके देन यू हैव टू कीप इट ऑन द स्ट्रेचर. क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी इधर उधर हुआ तो उस टाइम पे भी फ्रैक्चर हो सकता है और डिसलोकेशन ऑफ द वर्टेब्रा हो सकता है. सो यू हैव टू मैनेज इट वेरी इंटेलिजेंटली, राइट? शोल्डर पे इफ यू हैव इंजरी, if the player has injury, तो हम उसको एक नॉर्मल स्लिंग्स होते हैं, एक कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, नॉर्मल कपड़ा, राइट, जो आपको उस टाइम फील्ड में अवेलेबल हो. सो यू कैन टेक दैट एंड यू टाई. अब मेनली क्या होता है कि हम थ्री टाइप्स में हम उसको टाई कर देते हैं. You know, ये सारी चीजें हैं for the coaches and the teachers. मतलब they should actually know about it, क्योंकि this is the first point of treatment. अगर first point of treatment ठीक हुआ तो आपका आगे प्लेयर बहुत जल्दी गेम में वापस आ जाएगा, अदरवाइज उसका उतना ही डिले होगा for further treatment, because the first line of treatment is the most important treatment, right? So the first the young sling, we call it a young sling. अब कैसे होता है young sling? So you tie from here और यहाँ से पूरा tie करके then you come back, right? So it is a opposite हम यहाँ से दूसरे शोल्डर से जाके, इससे अगर मुझे यहाँ पर लगी है तो मैं उसको opposite शोल्डर से tie करके we tie it under the knees and then we tie it the opposite side. If we talk about bucket sling, there is another sling, bucket sling. A bucket sling, इसके नाम से पता चलता है कि एक bucket की तरह है. So it is a roll. So मैं उसको पूरी neck से यहाँ से लूंगी और एक ऐसे tie कर दूंगी, so that ये हमारा एक पोजीशन में रहे, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज दिस. कैरावैट स्लिंग है. अब उसमें क्या करेंगे, वी टाई बोथ वेज. ये दोनों हम लोग ऐसे होल्ड करके वी जस्ट टाई इट ऑल ओवर, राइट? सो
ये वाली जो स्लिंग्स हैं ये हम लोग यूजली जैसे से अगर कोई लेबरल टियर हो गया या रोटेटर कफ टियर हो गया से हमारा डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो गया, उसमें हम मेनली यूज करते हैं। अगर एल्बो इंजरी होती है, सो एल्बो इंजरी में हम क्या करते हैं, वी रोल अ ब्लैंकेट, तो आई एम श्योर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो भी आपको कोई भी कपड़ा मिल जाए, एनी काइंड ऑफ क्लॉथ, सो जस्ट रोल इट, और मे बी अ स्मॉल पिलो, जो भी आपको फील्ड में अवेलेबल हो, यू कैन जस्ट टेक इट पेशेंट के चेस्ट पे, उसको से इफ इट इज अ पिलो, सो उसको ऐसे रख के एंड देन आप इसको ऐसे होल्ड कर दो, और उसको अपर से अगर उसका राइट हैंड है या मे बी बायलेटरल इंजरी भी होती है, सो उसको ऐसे होल्ड करके एंड देन यू जस्ट टाई इट, ठीक है, सो दैट उसको हम लोग एक सेफ जगह पे उसको पहुंचा दें, राइट। और क्या करते हैं, एक एंगल यूजली अगर फोरआर्म इंजरी है तो 90 डिग्री एंगल, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल जिसपे हम मेंटेन करते हैं उस पेशेंट को। अब जब रिस्ट की इंजरी आती है, सो रिस्ट एंड फिंगर्स, राइट, सो रिस्ट इंजरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो वी टाई, एक हम जब इंजरी होती है रिस्ट की, एक हम यूजली क्या करेंगे, इट्स अ न्यूज़पेपर, मे बी अ न्यूज़पेपर और समथिंग, वी टेक इट लाइक दिस, इसको इस पोजीशन में रखा एंड देन टाई इट, इसको ऊपर से टाई कर दिया, टाई करके एक अगेन मैनेजमेंट जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन होएगा उस पे हमें लेकर जाना है उसको, राइट। अगर फ्रैक्चर ऑफ द फिंगर्स है या फ्रैक्चर ऑफ योर फैलेंजेस है या डिसलोकेशन ऑफ फैलेंजेस है, उसमें हमें यू हैव टू टाई द फिंगर्स लाइक दिस। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी से लकड़ी ही अगर मिल जाए, जो फील्ड पे कुछ भी गिरा हुआ लकड़ी मिल जाए, या कई बार हम आइसक्रीम स्टिक्स बोलते हैं, बट आइसक्रीम स्टिक्स अगर नहीं अवेलेबल, सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल उस टाइम पे कि हम लोग को किस चीज से हम उसको टाई कर सकते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट, अगर से कोई दो लकड़ियां मिल जाए, सो वी जस्ट कीप योर फिंगर लाइक दिस, टाई कर दिया। और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आपके पास अगर टेप ही है, टेप भी नहीं है, अगर बैंडेज ही है, सो उसको टाई कर दिया, सो दैट वो एक फिक्स पोजीशन में रहे, राइट। सो इस चीज का हम लोग को मेनली हमें ध्यान रखना है, राइट। अगेन फिंगर्स का कुछ भी हो सकता है, कोई बास्केटबॉल से इंजरी हो जाए या सॉकर, या मे बी स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाए, सो उसको हमें यू हैव टू जॉइन दोस फिंगर्स। जैसे मैंने स्पाइन का आपको पहले भी बताया था कि लॉग रोलिंग मतलब हम एक इमोबिलाइज इक्विपमेंट भी आता है, बट आई एम श्योर नोबडी कीप्स इट ऐसे। अगर मेजर प्लेयर्स होते हैं या मेजर गेम्स होती हैं, उसमें हम इमोबिलाइजेशन इक्विपमेंट होता है, सो वो हम जरूर रखते हैं उसमें। सो उसमें हम एक लॉग रोलिंग में एक पेशेंट को एक लॉग, जैसे से दिस इज वन लॉग, सो हम उसको ऐसे रख के ऐसे ही लेकर जाएंगे। We can't just bend, मतलब उसको कहीं पर भी बेंड नहीं करना पेशेंट को। So spine injury पे हमेशा you keep the patient straight, very straight, and if you have that equipment, उसमें tie करने के लिए होता है पूरा all over, and it is very easy. But in case if you don't have it, if you have a stretcher or if you don't have anything, तो 2 से 4 people can hold, एक neck पे पकड़ेगा, एक back पे ऐसे पकड़ के, and then दूसरा legs and arms पे पकड़ के उसको लेकर जा सकता है, but again straight line पे, straight, right. Hamstring injuries, quadriceps injuries we spoke about, right. Knee injuries मैंने आपको सारी बता दी थी। Again, you know, the main thing is that we need to about the, अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, या मुझे लगता है कि मेरे एंकल स्प्रेन ऑलरेडी है, सो पहले उसको ठीक करना है, so that we prevent a major injury. A normal injury can be managed very easily, but a major injury takes a lot of time. अगर वो grade change हो जाए आपकी injury का, so it takes a lot of time. So उसको आपको एक evaluation करना, और एक specifically एक player की तरफ से एक communication is very important, right? उसमें भी अब क्या होता है कि intrinsic factor क्या होता है उसमें? So the participant has to tell. अगर जो भी एक player है उसको एक awareness अगर होएगी, तो वो एक अपने कोच को जाके बताएगा कि आई हैड एन इंजरी, सो प्लीज आई डोंट वांट टू प्ले टुडे। सो दिस इज लाइक अ सेल्फ प्रिवेंशन। अगर प्लेयर उस टाइम इंजरी ऑलरेडी इंजर्ड पार्ट पे प्ले करता है, तो उसको री इंजर हो सकता है, एंड री अकरेंस जो इंजरी होएगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हील, राइट। सो हम उस स्टेज पे नहीं लेकर जाना चाहते।
प्रॉपर इक्विपमेंट, आपका जो प्रॉपर फैसिलिटीज है, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं. योर एनवायरमेंट कैसा है, से अगर बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है, सो यू नीड टू हैव दोस प्रॉपर इक्विपमेंट्स, राइट. प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए. कितनी अगर आपको नॉर्मल स्प्रेन है, सो फिजियोथेरेपिस्ट कैन कम ओवर, एक आपको टेपिंग कर सकता है एंड देन यू कैन हेल्प आउट, राइट. वो आपको उसी टाइम एक मैनेज कर देगा किस फॉर्म में. तो उसको, बिकॉज द फिजियोथेरेपिस्ट नोज दैट बेटर, है ना. क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, 5 मिनट्स में हमें पता है कि प्लेयर को वापस भेजना है, सो वी असेस दैट वे, राइट. तो डायग्नोज करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे. सो कैसे ब्रेसिंग करनी है, सो हम वैसे कर सकते हैं. अगर तो नॉर्मल है तो कोच भी कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर आपका प्रॉपर इक्विपमेंट है, सो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग. आपको पता है कि आप प्रॉपर सूटेबल इक्विपमेंट्स आपने वेयर किए हुए हैं, आपको इंजरी हो ही नहीं सकती, राइट. And the most important is training, the appropriate training that you need to have, right. अच्छा, इसके साथ साथ the psychological and the nutrition part also comes over. अगर हम इस पे ही नहीं ध्यान देंगे तो इंजरी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, right. So you need to have all those things in mind and then go further, and you need to educate all your players according to that, right. If we talk about sports injuries, अब हम इसको 2 टाइप से मैनेज कर सकते हैं. So one is सेल्फ ट्रीटमेंट, मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है. वी नॉर्मली हम राइस लेते थे, एक एक्रोनियम होता है. सो राइस अगर, मतलब उसमें हम रेस्ट करेंगे, आइसिंग थेरेपी करते हैं, नॉर्मल कंप्रेशन करेंगे, एलिवेट करेंगे, 2-3 पिलोज रखेंगे और वो ठीक हो जाता है. बट दैट इज लाइक अ फर्स्ट डिग्री इंजरी, राइट. अपने आप मेडिसिनली दैट इज अ सेल्फ ट्रीटमेंट, ठीक है. और एक सेल्फ थेरेपी, अपने आप उसको थोड़ा अपने आप रब किया एंड देन वो हो गया ठीक. बट अगेन अगर उसको प्रोफेशनल केयर चाहिए, दैट मीन्स हम लोग को कैसे उसको एंगेज करना है. सो यू नीड टू, अगर तो इट इज नॉर्मल पेन, ठीक है, तो एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नॉर्मली ले सकता है पेशेंट बाय द गाइडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिशनर. अगर उसको लगता है कि नो, इट इज समथिंग मेजर, so a physio can handle that. Physio is a very intellectual person for a sports injury. So हम लोग इंडिया में हम इसी अवेयरनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, so that every team, every player, every school should have a physiotherapist engaged, so that the players are not just thrown. We've actually seen कि जो player है वो sports से निकल जाता है and we are losing those टैलेंट्स. हम क्यों नहीं ओलंपिक्स तक बहुत ज्यादा मेडल्स ला पा रहे. सो हमारा जो रूट कॉज ये बहुत ज्यादा है. अगर मैं बोलूं हरियाणा स्टेट में देयर इज सो मच टैलेंट, देयर सो मेनी स्पोर्ट्स प्लेयर्स, बट हम लोग उसको, वी आर लूजिंग इट. व्हाई वी आर लूजिंग इट? द ओनली रीजन इज बिकॉज वी आर नॉट गिविंग अवेयरनेस टू देम, राइट. सो हमें वो अवेयरनेस अगर हम देंगे पेशेंट को, तो हम बहुत आगे जाएंगे. एंड हमारे लिए, इंडिया के लिए, कहीं पर भी ये ओलंपिक्स में जितने गोल्स हमारे पास आ सकते हैं किसी के पास आ भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द टैलेंट, इट इज सो मच, राइट. सो हम लोग को ही प्रिपेयर करना है एंड हम कलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो ही काम हमारा आगे बढ़ेगा, राइट. सो अगर हमें लगता है देयर इज अ मेजर इंजरी, अगर हम मैनेज फिजियोस भी नहीं कर सकते, सो वी हैव टू रिकमेंड फॉर अ सर्जन, है ना, an orthopedician, a sports surgeon होते हैं. so you can go to a sports surgeon. अब उसमें भी किस टाइप की इंजरी है, जिसको हमें कितनी रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, that a sports surgeon will tell you better, है ना. उसमें हम अपने तरीके से गैस नहीं कर सकते कि हमें करवानी है इंजरी, नहीं करवानी, नो, बिकॉज क्योंकि हमें मेन हमारा एम इज दैट वी हैव टू कम बैक इन द स्पोर्ट, राइट. अगर हम वापस ही नहीं आना चाहते तो there is a different story. But yes, if you know that you want to play this game, like many of the players, if you talk about Sachin Tendulkar, if you talk about say there are many players जिनको ACL injury हुई थी, जिनको tennis elbow हुआ था. Sachin Tendulkar had tennis elbow, so उसको manage किया है properly and he came back to the game. उसको कोई problem नहीं है. 3 months he had to stop his game for 3 months because he was not able to play because of his tennis elbow, but ultimately he came back and he was playing well, right. And it is not about Sachin Tendulkar, it is about every person. Human body hai, it can be treated, it can be healed.
ये अभी एडवांस ट्रीटमेंट्स की वजह से देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी मैजिकली ठीक होती हैं, मैजिकली ट्रीटमेंट्स हैं, राइट? अब यू नो द हेड कोच, मतलब आपका जो आप प्लेयर को जब एक अवेयरनेस देते हैं, सो उसको एक अप्रोच अपने हेड कोच को, अपना जो भी उनका पर्सनल कोच है उसको देनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे कहाँ पर इंजरी आ रही है या मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट द कोच कैन अगेन वो आगे अपने से द मेडिकल टीम, जो भी मेडिकल ऑफिसर है उनसे बात करे, जो मेडिकल डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करें, एंड एक पर्सनल स्पोर्ट्स फिजिशियन से बात कर सकते हैं। और कोई भी अगर मेडिकल कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है, लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट, एन ऑस्टोपैथ, कई बार ये होता है कि एक नॉर्मल ऑर्थोटिक लगाकर ही आगे हम चल सकते हैं। से अगर फ्लैट फुट हो तो हम पेशेंट को या प्लेयर को हम एक शू इंसर्टर दे देते हैं, सो दैट उसका जो फुट है उसकी पोजीशन ठीक हो जाए। सो उसके लिए ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए ना कुछ चाहिए, वी जस्ट नीड एन ऑर्थोटिक। एक ऑर्थोटिक क्या करेगा, उसको एक उसकी फुट की शेप का एक फुट इंसर्टर दे देगा, सो उसकी वजह से सो द पेशेंट हैज यू नो द एंगल चेंजेस एंड द परफॉर्मेंस चेंजेस। एक शू की चेंज से ही आपकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ जाता है, राइट? सो क्या रिक्वायरमेंट है, योर हेड कोच नीड्स टू नो अबाउट इट, राइट? अब से हो सकता है एक कायरोप्रैक्टर चाहिए हो, एक सॉफ्ट टिश्यू थेरेपिस्ट, नॉर्मल मसाज थेरेपिस्ट कई बार चाहिए होता है, ठीक है? सो हो सकता है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो। मे बी न्यूट्रिशन, कई बार नहीं, ये तो इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि न्यूट्रिशनिस्ट हमें बहुत रिक्वायर्ड है प्लेयर्स के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट बहुत रिक्वायर्ड है, जो हमारी फील्स आर बीइंग इग्नोर्ड, ये बहुत इग्नोरेंस चल रही है हमारी स्पोर्ट्स फील्ड में। सो इसको हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली इसको ठीक करना है, राइट? एक बायोमैकेनिकल जो एक फिजियोथेरेपिस्ट सजेशन देता है, वो और कोई सजेशन नहीं दे सकता। हो सकता है कि एक बारी एक प्लेयर को सिर्फ एक रिस्ट बैंड पहनने की वजह से उसकी दिस एन इंटरनेशनल प्लेयर, आई वुड से मुझे नाम नहीं आता, शायद ब्रेटली का था। सो उसने क्या किया, एक रिस्ट बैंड ही यूज्ड टू वेयर, और उसको किसी ने से फिजियो ने गाइड किया that please take off your wristband and then play. उसकी परफॉर्मेंस about 10% इंक्रीज हो गई, यू नो। अब बायोमैकेनिकली उसको पता चल गया कि अब सिर्फ रिस्टबैंड उतारने से, लगाने से इज अ डिफरेंट स्टोरी, उतारने से भी अगर मेरी परफॉर्मेंस सही हो जाएगी, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ जी हमने पहन लिया रिस्टबैंड बिकॉज मेरा रिस्ट इज सेफ, बट आप अपने तरीके से नहीं वर्क कर सकते। सो यू नीड टू नो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सबसे पहले इफ आई वुड से, जो आपका प्लेयर का एक जो फर्स्ट लाइन, मतलब कोचेस तो है ही है, उससे पहले पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पेरेंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्स एजुकेशन, बिकॉज उनको पता है कि मेरा बच्चा, मेरा my son, my daughter is into sports, तो उसको क्या परफॉर्मेंस उसकी कैसे एनहांस होगी, या उसको क्या स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, पेरेंट्स नीड टू नो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर द पेरेंट्स एज वेल, जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स इंजरीज पे डालना चाहते हैं या जो नहीं। कई हमने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो हमेशा कहते हैं कि वी डोंट वांट कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाए। व्हाई नॉट? उनको बिकॉज अवेयरनेस नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या है, राइट? सो उस चीज पे हमें बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करना चाहिए। सो दिस लेक्चर इज टू बी गिवन टू द पेरेंट्स एज वेल। सो पेरेंट्स को भी प्रॉपरली उसको एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारे जनरेशन जो एक गैप बन चुका है उसको हम रिकवर कर सकें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक पेरेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स एजुकेटर, एक एथलीट, ये ना एक पूरी एक लाइन बनती है, एक हायरार्की है ये। सो यू नीड टू नो कि कहाँ पे किस का वर्क है। सो उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं गेम्स को। एक नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज एक नॉन फार्माकोलॉजिकल होती है। नॉर्मल कुछ भी नहीं करना, एक रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज की, नॉर्मल रिहैबिलिटेशन किया और हो गया, पेशेंट ठीक है। एक फार्माकोलॉजिकली होता है, कई बार उसको पेन किलर देनी पड़ती है। हो सकता है कोई
कोई भी पेन किलर दे दिया, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिया, कोई एनाल्जेसिक दे दिया उसको, कोई मसल रिलैक्सेंट दे दिया, उससे ठीक हो जाता है। हो सकता है कि उसको नॉर्मल विटामिन डी देकर, हो सकता है नॉर्मल विटामिन B12 देकर वो ठीक हो जाए। सो इट डिपेंड्स, वो सारी जजमेंट दैट इज अप टू द मेडिकल ऑफिसर जो आपका है, वो उसको उस हिसाब से हैंडल करेगा। सो यू नीड टू नो, राइट। अब क्या क्या इश्यूज, जैसे इन्फ्लेमेशन होगी, नॉर्मल स्वेलिंग होगी, है ना, सो उसको कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर इफ देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग, उसको कैसे मैनेज करना है। सो उस मैनेजमेंट की एलिवेट कर लिया उसको, एंड एलिवेशन करके, सो यू नीड टू स्टॉप दैट ब्लीडिंग। सो द मेन ट्रीटमेंट गोल जो हमारा है अर्ली फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। अगर हम अर्ली फंक्शनल रिहैबिलिटेशन पे पहुंच जाते हैं तो हमारा प्लेयर बहुत जल्दी गेम में वापस आ सकता है, बट इट कुड बी फ्रॉम 5 minutes to 6 months. So अब आपका डिसीजन है, where do you want to go? You want your treatment to be done in 5 minutes? अगर आपको पता चल रहा है this is an acute injury, it has just happened, manage it. You have to manage it. You have to go to a proper, starting again with the parent and the coach and the physios and the surgeons, and then depends, right? So where do you have to go? So you need to be aware of every point. हम लोग नॉर्मली टो टैप्स होता है, टो टैप्स इज अ सिनोनिम जो हमने बनाया हुआ है इसका, एक असेसमेंट ऑफ इंजरीज के लिए, राइट। सो इसमें क्या है, सो द फर्स्ट थिंग इज टू टच। जब हम प्लेयर को टच करते हैं हमें उससे पता चल जाता है कि कितना उसका टेम्परेचर हाई है, कितना उसमें स्वेलिंग है, कितनी उसमें कितनी हॉटनेस है। सो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी इन्फ्लेमेशन है, राइट। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है देन वी नीड टू गो फॉर फर्दर मैनेजमेंट, राइट। ऑब्जर्व करना है उसको, उसके साथ बात करनी है। सो यू नीड टू नो, यू नीड टू टेक क्विक हिस्ट्री कि कैसे इंजरी हुई, इंजरी का रीजन क्या था। आधी चीजें तो हमें इंजरी के क्वेश्चंस आंसर से ही पता चल जाता है, हिस्ट्री से ही पता चल जाता है। हम कितनी एक्टिव मूवमेंट कर सकता है पेशेंट, कितनी कई बार होता है कि वो प्रॉपर्ली हम बोलते हैं कितना लगा, अच्छा हाथ ऊपर करके दिखाओ, ओके डन, ठीक है, शोल्डर नो प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ नहीं है। बट अगर पैसिवली हमें कराना पड़े, से पेशेंट इज नॉट एबल टू डू इट एंड पैसिवली करवाना पड़े एंड देन वापस आते भी उसको बहुत पेन हो रही है, देन वी नो ओके दिस इज काइंड ऑफ अ पैसिव मूवमेंट एंड यहाँ पर कुछ पेन है, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द इंजरी मैनेजमेंट विद अ स्किल टेस्ट, राइट। सो एक क्विक इंजरी, एक प्रॉपर उसका एक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हमें पता चलेगा, एक पेन रेंज, एक उसमें कितनी स्नैपिंग हुई, कितनी क्रैकिंग हुई, क्या आवाज आई, उसके बारे में हम लोग को एक क्विकली एक हिस्ट्री जरूर लेनी है। और उसकी कितनी हम ऑब्जर्वेशन में हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी है। सो उसको एक स्टेबलाइज करने का, अगर आपको लग रहा है कि योर जॉइंट इज लूज एंड उसको कैसे बकल अप करना है, जैसे मैंने आपको पहले पूरा बताया है, सो वो फर्स्ट एड देना इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, राइट। अब उसके बाद कितनी एफ्यूजन है उसमें, कितना एडीमा है, कितना उसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, कोई हेमेटोमा तो नहीं बन गया, कोई एब्रेजन तो नहीं है, कोई एलर्जी या इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उसकी वजह से। मतलब उसमें सारे हमें सब कुछ एक स्किन से लेके बोन तक, सो वी नीड टू नो। अगर हमें पता होगा तो ही हम आगे अपने पेशेंट्स को, अपने प्लेयर्स को बता पाएंगे। सो हमारे लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन टच से हमें सब कुछ पता चलता है, मूवमेंट हो गया। हम लोग ने बहुत ज्यादा नॉर्मली सुना हुआ है कि एबीसी बहुत लोग बोलते हैं एबीसी करना चाहिए पहले। तो व्हाट इज एबीसी? एबीसी का होता है कि आपका एयरवे, द एयरवे इज क्लीन। सो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका नेजल कैविटी, उसका ओरल कैविटी, पीछे ओरल कैविटी, आपका फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये सारा क्लियर है, क्योंकि यहां तक हमें पता चल सकता है, राइट। उसका अगर लंग्स में उसके कोई आवाज तो नहीं आ रही, कई बार होता है कि पानी भर गया लंग्स में, सो कोई उसका रिब फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई उसको डायफ्राम में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही। सो वी नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग। उसकी रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि नॉर्मल पैटर्न के अलावा अगर वो ब्रीद कर रहा है, कई बार होता है कि वो से बहुत ज्यादा ये ब्रीद कर रहा है, राइट। सो ब्रीदिंग पैटर्न से भी बहुत सारी चीजें हमारी रिवील हो जाती हैं कि किस टाइप की इंजरी हो सकती है।
एक प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही है, अगर उस पर कोई वूंड हो गया है, उस पर अगर हम डायरेक्ट प्रेशर डाल रहे हैं, कितना ब्लड ऊज आउट हो रहा है, अगर तो बहुत ज्यादा अगर ऊज आउट हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग को उस चीज को उसको एलिवेट करके रखना है, उसको कैसे हमें करना है, राइट। सो द प्रायोरिटी ऑफ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रायोरिटीज। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज अगर कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको इमिडिएटली क्लियर करना है, कोई कार्डियक अरेस्ट है उसको इमिडिएटली लेकर जाना है, कोई अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है, सो वी नीड टू नो कि उसको एम्बुलेंस बुलानी है और सीधा उसको लेकर जाना है। कई बार होते हैं सेकंड प्रायोरिटी इंजरीज होती हैं जो एक्चुअली दे आर लाइफ थ्रेटनिंग, बट स्टिल हमें पता है कि वो मैनेज हो जाएंगी, बट इसमें हम लोग बहुत यू नो द मेजर वंस कम ओवर, द हेड इंजरी, द स्पाइनल इंजरीज, अगेन उसको हम प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करेंगे। अब इसमें यू नो द फ्रैक्चर्स कम, द नर्व इंजरी कम्स, जो हमें पता है वो मैनेज इजिली हो जाएंगी, राइट। एंड द थर्ड प्रायोरिटी इज यू नो द स्प्रेन्स एंड द स्ट्रेन्स, कोई कट्स और ब्रूजेस हो गए, उसको हम अपने अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे और उसको हम इंजरी उसका मैनेजमेंट करेंगे, राइट। एक और हमारा आता है पुलिस प्रिंसिपल। पुलिस पहले होता था राइस, फिर आया प्राइस, फिर आया प्राइसर, राइट। सो अब आता है पुलिस। पुलिस दैट इज द प्रोटेक्शन, एक ऑप्टिमल लोडिंग, ठीक है, कितनी उसकी रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिव, ये सारा कुछ हमें उसी टाइम बताना है। दिस इज द फर्स्ट एड, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट आई ऑफ योर ट्रीटमेंट, राइट। उसके बाद आइस कंप्रेशन, देन एलिवेशन स्ट्रेट अवे। इफ द पेशेंट हैज थर्ड डिग्री इंजरी, द फर्स्ट डिग्री इंजरी, यू नीड टू नो कैसे उसको मैनेज करेंगे। सो द मैनेजमेंट में हम लोग DRABC, जिसको हम एक डेंजर, एक रिस्पॉन्स, एक एयरवे और ब्रीदिंग सर्कुलेशन में हम डिवाइड कर देते हैं। सो कितना कितना उसका कैसा सर्कुलेशन है, उसका कैसा रिस्पॉन्स है, वो हम लोग को इस मैनेजमेंट से पता चलता है। और अगर तो एक नॉर्मल ब्लिस्टर है वो कैसे ठीक होएगा, एक राइस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। फ्रैक्चर है तो उसको हम कैसे इमोबिलाइज करना है, स्प्रेन है तो उसको कैसे क्लीन करना है, कोई रेंचिंग फोर्स, यू नो द टीयर्स हैं, कोई रबिंग ऑफ द स्किन है, तो वो नॉर्मली क्लीन हो जाते हैं उसी टाइम, एक नॉर्मल बीटाडिन लगा के वो ठीक हो जाता है। इससे क्रायोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्लेयर। सो क्रायोथेरेपी के लिए एक हम ऐसा कुछ पैक, दिस इज अ वेरी हर्बल पैक। अब क्रायोथेरेपी के लिए these are used these days. अब जो पहले यूज होते थे, you know the silicone ones, they are not being used. We use these ones. These are the thermal and the cryotherapy packs, right? अब cryotherapy it limits the bleeding उसी टाइम आपकी, और कोई edema formation नहीं होने देती. It has to be, it actually reduces the pain and एक gate control mechanism में भी help करती है. Endorphins, enkephalins, इनको एक release करने में help करती है, right? एक बहुत quick सा, I will take another 2 minutes. So we have to manage more things. एक होता है no harm, आपने सुना होगा no harm, don't do any harm. अब harm means HARM, मतलब हमें कोई हीट नहीं देनी. So that's what I was saying, cold दो, हीट नहीं देना बिल्कुल भी, right? So no heat, no alcohol, make sure. कोई भी रनिंग और कोई मसाज बिल्कुल नहीं चाहिए on the same time अगर कोई आपको इंजरी हुई है. अब हीट, मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आई वांट टू एक्चुअली क्लियर इट हियर कि क्यों सुपरफिशियल हीट नहीं देनी. उसके बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं. ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेंसरी चेंजेस हो जाते हैं, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसकी वजह से हीट इंजरीज और हाइपरसेंसिटिव पेशेंट्स हो जाते हैं. और द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू नो फर्स्ट टाइम पे ये इंक्रीज करती है ब्लीडिंग पे, स्वेलिंग इंक्रीज कर देती है. Never do superficial heat therapy at the first line of treatment. Only cold therapy is recommended. It is research based. It has to be followed. एक physiotherapist का role helps in, you know, physical pain, heal injuries, increase the mobility, build strength. अपना balance increase करने के लिए, cardiopulmonary performance के लिए, कोई भी sprain है, ankle है, कोई उस चीज को manage करने के लिए the physiotherapist is there. आपकी कोई भी यू नो द इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज में या कोई भी आपकी पोस्चर करेक्शन है उसको मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट इज देयर. कोई आपकी जॉइंट स्टिफनेस है या कुछ स्प्रेन या फ्रैक्चर्स में भी मैनेज करता है फिजियोथेरेपिस्ट. आपकी रिहैबिलिटेशन के लिए हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्चर्स रिलीज करते हैं, आपकी बॉडी की मैकेनिकल असेसमेंट
आपकी बायोमैकेनिकल असेसमेंट जो फॉल्स हैं बॉडी में, वो सब कुछ मैनेज करने के लिए यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स इंजरीज. And we have been playing many games. हम लोग national sports wheelchair cricket India के लिए भी जाते हैं. उसके साथ साथ हमने बहुत सारी games play की, and we got to know कि बहुत सारे players, बहुत सारी teams never had a physiotherapist, but it plays a very important role, and physiotherapy is very important for sports injuries. Thank you so much. मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरा lecture end ही नहीं हो सकते क्योंकि I have so many things, you know. I actually want each and every person to get so much aware about physiotherapy and about you know, sports injuries, because यहाँ पर बिल्कुल दिया ही नहीं गया है इंडिया में. I really can't understand why people are not being aware of physiotherapy and obviously sports injuries. Thank you, and sorry I had to be very fast because मेरे पास बहुत material है बोलने के लिए अभी भी. It is not ending. Thank you. Well, I understand very much, ma'am, because for a topic like yours, it needs a great level of elaboration, and also it is, I'm very much sure, beneficial for all the school teachers, and basically because this is an FDP program which is related with the physical education teachers of the schools. I'm very much sure that all the faculty members who have attended this must be benefited because of this. So thank you so very much once again, Dr. Kaur, for providing the upgraded information about everyday injuries that usually the physical education teachers face every day in school, on playground, or while coaching. I'm sure these information, these guidelines will help of serious injuries, because now I suppose we know the trick to aid the injuries in a very proper way. We'll go ahead now and take some time for the question and answers. Yes. Just a reminder for our viewers today, please be sure to type your questions into the comment section of the PEFI page. Mohit sir, do we have any questions? Yes, ma'am. Thank you so much, Amrita ma'am. Yes, sir. Ma'am, first question is from Nishant Yadav. What is the basic difference between laceration and incision? Lacerations होती है नॉर्मल ऊपर, जैसे नॉर्मल चोट लग जाती है स्किन पे, जस्ट स्किन ऊपर से एब्रेस हो गई, दैट इज द एब्रेशन, स्किन एब्रेशंस, राइट. और अगर अंदर जाता है, अगर हमारे कट पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड लैसरेशन. Now, next question, Fardeen from GD Goenka, Ghaziabad. Can you suggest some rehabilitation exercise for tennis elbow? सर बहुत सारी हैं, बहुत सारी टेनिस एल्बो की एक्सरसाइजेज हैं. आई वुड रिकमेंड आप पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, बिकॉज इट इज अ होल रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर टेनिस एल्बो, एंड अलोंग विद इट बिकॉज इट इज इसको एपिकॉन्डाइटिस भी कहते हैं, एल्बो की लेटरल एल्बो की इंजरी होती है. सो इस चीज को मैनेज करने के लिए there are many things to do, right? But just to start off with it, एक आइस थेरेपी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये है, this is a very recommended one अभी at present. This is a organic heat and cold pack and very very helpful. So ये आप सब first point of treatment आप ये कीजिए and it will definitely help you. ठीक है, और बाकी आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए. I can tell you all the exercises, मैं उसमें आपको पूरा गाइड कर दूँ. Next question, Muni Sami asking a question. What is the difference between a shoulder separation and a shoulder dislocation? सेपरेशन कुछ नहीं होता. शोल्डर अब या तो फ्रैक्चर होता है या डिस्लोकेशन होता है, राइट? तो डिस्लोकेशन मतलब जैसे सो हियर दिस, सो डिस्लोकेट मतलब ये एक कैविटी होती है यहाँ पर, हाँ, शोल्डर में एक कैविटी है जिससे वो बाहर आ गया, जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो बाहर आ गया. सो दैट इज द डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर, राइट? और इसके अलावा यहाँ पर या तो वो किस फॉर्म में बाहर आ रहा है, आपका पूरा रोटेटेड कफ बाहर आ रहा है, सो दैट इज व्हाट इट इज, राइट? और या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, हेड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, राइट? सो ऐसे होता है इसका दो. Vinod Sharma asking a question, how we manage from lumbar spine injuries like L3, L4? Sir, again, it is a whole lecture, whole पूरा बहुत बड़ा treatment है. So the first thing is you need to know about what is L3, L4, L5. ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको quick पता है, because I'm sure जिन्होंने ये question पूछा है उनको ये problem
हो सकती है, I mean, you know, I'm just saying, क्योंकि this is a very common injury, और क्योंकि इसके लिए भी the whole range of exercises are there, and start off with कि अगर हम you know, if we start off with, अगर acute injury है, अगर अभी अभी हुई है, तो अगर cold pack से start करके, and later you can go with heat treatments, and then with the further osteopathy and the chiropractic, and maybe, you know, cupping therapy हम लोग को जरूरत पड़ सकती है. So and along with the exercises and rehabilitation, वो पूरा करना important है. So आप personally मेरे से एक बार अगर ज़्यादा है तो आप मुझसे contact कर लीजिए, no problem at all. Thank you, ma'am. Over to you, Dr. Amita, ma'am. Thank you, Mohit sir, and thank you very much, Dr. Kaur, for answering all those questions. Gentle reminder to all the participants of Day 4 Faculty Development Program organized by the Physical Education Foundation of India. There is an online feedback form in the comment section. You can see the link to the online feedback form in the comment section. Please click on the provided link and fill in the form within the time capsule. It will expire in an hour, so please fill in the feedback form, just a reminder, and fill in during the time capsule. Now, I would like to request the social worker and the founder of Adharshila Academy, teaching since last 12 years. His students serve in various government sectors, to propose a vote of thanks. I request PEFI Executive Member, Mr. Amit Kumar sir, to please propose a vote of thanks. Amit sir, please. Thank you, ma'am. Thank you, Amrita, ma'am. I'm honored to lucky to have the opportunity to attend this wonderful virtual faculty development training program organized by PEFI. National Secretary Dr. Piyush Jain sir, Chetan sir, Dr. Amrita Parnay ma'am, and Mohit sir and Vivek sir, and all other members who took the lead to create this program. I would like also thank to respected physical education teacher, coaches who have attended the workshop and blessed us with their presence. I would like to thank our speaker, Dr. Ramandeep Kaur ma'am, for the topic she present and focused on management of sports injury. The way she emphasized on the importance of sports injury for the student and sports person are very good. The way she explained this subject was extraordinary. I would also like to thank her for making such an excellent presentation and making this program more interesting and meaningful. Hopefully, this training program will help all of us to enhance our knowledge to our importance of sports injury and how to implement and tell a student about it. Once again, I thank all of you for your cordial cooperation. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Well, ladies and gentlemen, that wraps up with our 4th day of FDP. On behalf of Physical Education Foundation of India, I once again thank you all for making time in your busy schedules to joining us here. We hope to see you all again for tomorrow's session. It's been our pleasure to host this event, and I wish you all a very pleasant day. Thank you.